Hello students, class 12th, accounting for partnership firms, fundamentals. Question number 53. Up to now, you have to know how to calculate the interest on drawing and what are the major parameters of the interest on drawing, interest on capital, what is the calculation of interest on loan and how it is adjusted, distinguish between charges and appropriations. All such items, these are very important in this chapter, but we have to learn them easily. So we continue our process. We reached to question number 53. So question number 53, you have to prepare the profit and loss appropriation account. Prepare the profit and loss appropriation. So first of all, you have to draw the account. Right? So profit and loss appropriation account. This side is debit, this side is credit. And partners, there are the three partners. Name of the partner, partners capital account. Name of the partner is Amit, Vinita and Charu. Amit, Vinita, Charu. Particulars, Amit, Vinita and Charu. ये particulars हैं. By profit as per profit and loss account, rupees 5 lakh. एक आइटम डन. आगे क्वेश्चन को रीड करो. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अराउंड और एट द रेट ऑफ द 5%. तो टू interest on capital, Amit, how much is capital? Rupees 1 lakh. 5 by 100 is equal to rupees 5,000. Vinita, 2 lakhs into 5 by 100, 10,000. Charu, 3 lakhs into 5 by 100 is equal to rupees 15,000. So 30,000 main column. Followed by Amit's salary. Calculate the Amit's salary. Amit's salary. How much? 10,000 per month. So 10,000 and for 12 months, 1,20,000. Followed by Vinita's commission. Therefore Vinita's कमीशन कितना है सर? नेट प्रॉफिट पर उसकी कमीशन है, नेट प्रॉफिट, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है. तो 5 डिवाइड बाई 105, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर
यहाँ पर वैल्यू आ गई 23,809.52। तो हमने कितना ले लिया 23,810 टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। एक पॉइंट और है इसके अंदर, जो नेट प्रॉफिट का 10% है। तो नेट प्रॉफिट हमारा 5 लाख, नेट प्रॉफिट 5 लाख है इंटू, तो ये 50,000 रुपये ट्रांसफर टू रिजर्व। कैलकुलेट द प्रॉफिट टोटल 5 lakh to profit और ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस माइनस दिस, प्रॉफिट निकालो। 276,190, 276,190। और अमित शेयर, विनीता शेयर और चारू शेयर कितना कितना है, ऑल दीज आर इक्वल पार्टनर। तो 276,190 इंटू 1/3, तो कितनी वैल्यू आ गई 92,063, 92,063। चारों का भी 92,063 और बचा हुआ 92,064 रुपये चारों को दे रहे हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट करनी होती थी। अब आइए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 लाख ओपनिंग कैपिटल है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, फॉलोड बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर 5,000, 10,000 और 15,000। और क्या क्या लेन देन है, अमित की सैलरी है, बाई सैलरी, अमित को सैलरी 1,20,000 रुपये की है, बाकी को नहीं है। बाई कमीशन, देखो कमीशन किसको मिली है, विनीता को कमीशन मिली है। और विनीता को कितनी मिली है 23,810, हमने राउंड फिगर कर लिया उसके। उसके बाद कमीशन के बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट, ये शेयरिंग जितनी आई है 92063, 92063, 92064, टोटल कर दीजिए, सबको टोटल आता है। और टू बैलेंस शीट कितना आ गया 317,063, 317,063 इसका, तो 317,063 इसका, 317,063 उसका वो बनेगा बैलेंस शीट। 3,25,873, 3,25,873, तो 3,25,873, तो 3,25,873 इसकी टोटल का टोटल इसका है 4,07,064, 4,07,064, 4,07,064, 4,07,000। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस appropriation followed by the partner's capital. Nothing is given, now the capitals are fixed or fluctuating, so it means we have to consider the fluctuating. So according to this you have to prepare the partner's capital account, but before this you have to prepare the P&L appropriation. All appropriation in the regard of interest on capital you have to place there. Amit's salary, Vinita's commission and transfer to reserve. रिजर्व नेट प्रॉफिट पर है, नेट प्रॉफिट पर आपने निकाल दिया।
और कमीशन आफ्टर चार्जिंग है, तो आफ्टर चार्जिंग आपने इस पर निकाल लिया, क्योंकि उस पर नेट प्रॉफिट पर है लेकिन उसका रेट है आफ्टर चार्जिंग। तो नेट प्रॉफिट आपने 5/105 नीचे कर लिया, तो ये वैल्यू आ गई। फिर इसको डिवीजन कर लिया, ऑल दीज आर द इक्वल पार्टनर्स, तो 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर काम करते हैं। रीड इट। Question number 54. This one is also interesting question. Prepare the profit and loss appropriation. Profit and loss appropriation account. Right? सबसे पहले place the profit by profit as per profit and loss account. How much? 3,20,000. Only 32,000. उसके बाद वर्किंग में आए अंशुल एंड आशु, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अंशुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक करो, उसका बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000, राइट। और दूसरे का है आशुस सैलरी, उसकी सैलरी 2,000 रुपये पर मंथ से कितनी बनती है? 24,000। अब एप्रोप्रिएशंस यानी appropriations are greater than profit, तो यहाँ पर क्या होगा? फिर आपने क्या करना है? एप्रोप्रिएशन, पहले इसकी वैल्यू को चेक कर लो, इन दोनों को टोटल कर लिया हमने 64, तो आप चेक करिए 64 ग्रेटर देन प्रॉफिट कितना है? 32। तब आप क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन रेशियो बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन रेशियो। और वो कैसे बनेगी? 24,000 अंशुल का है और उसका 24,000 है, तो इसे रिड्यूस कर लो, 3 0 से 3 0 8 और 8 3 24, तो तीनों टोटल हो गए 8। ठीक है। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंशुल, उसके कितना आएगा? सर 32,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, 8 चौक 32, 5 चौक 20, तो कितना आ गया? सर 20,000 रुपये। दूसरा टू आशुस सैलरी, आशु की सैलरी कितनी मिलेगी? अब सर 32,000 प्रॉफिट है और 3/8, 8 चौक 32 और 3 चौक 12, 12,000। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्लॉज है, आपको ध्यान रखना है, इसका बोर्ड में भी आ सकता है, ध्यान से देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देयर इज प्रॉफिट अवेलेबल इन द फर्म आफ्टर चार्जिंग ऑल आइटम्स ₹32,000, but there are the two appropriation. One appropriation Ansu's capital. While you have to calculate the interest on capital, it becomes the 40,000. Ashu's salary at the rate of ₹2,000, ₹24,000 in a whole year. So it means total 64. So appropriation are greater than that of the available profit. So you have to appropriate only up to the available profit. ध्यान रखना, you have to appropriate up to the available profit. So you have to prepare the ratio among the appropriation, that is the appropriation ratio. So Ansul
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 है, आशु का सैलरी 24,000 है, तो दोनों की रेशियो में 5:3 टोटल 8। तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 32,000 में इसको 5/8 तो इसको 20,000 मिलेंगे एज ए इंटरेस्ट, जबकि उसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है 40,000। उसे 40,000 की जगह कितना मिलेगा 20,000, और उसकी सैलरी बन रही है 24,000, तो उसे कितनी मिलेगी 12,000। तो दैट इज का परफेक्ट अप्रोप्रिएशन। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी पॉसिबल है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 55। तो यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन दिस। Profit and loss appropriation, profit and loss appropriation for the year end, right? By profit, आराम आराम से क्वेश्चन को समझते चलो। बाय नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट 1,55,000 रुपये है, और एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है देयर आर द 3 पार्टनर्स। नंबर 1 कबीर। कबीर को क्या अवेलेबल है, कबीर सैलरी, कबीर सैलरी कितनी है 24,000 रुपये। दूसरा जोरावर्स सैलरी, जोरावर्स सैलरी 24,000, दोनों का मिलकर कितना हो गया 48,000 सैलरी होगी। अब आते हैं पारुल्स कमीशन। पारुल्स कमीशन इज द थर्ड पार्टनर, तो देयर इज द turnover 5 lakh and commission at the rate of 2%, 50 lakh. तो that is called rupees 1 lakh। 1 लाख की 4 रुपये पारुल की कमीशन हो गई। उसके बाद आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पहला पार्टनर है कबीर, कैपिटल 5,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, 5/100, तो इंटरेस्ट इसका आ गया 26,000। कबीर के बाद आता है जोरावर। जोरावर की जो कैपिटल है वो 3,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100, तो 32 पंजे 160 यानी 16,000 रुपये। नेक्स्ट है पारुल। पारुल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी कैपिटल है 2 लाख रुपये इंटू 5/100, तो 5 दूनी 10, तो 10,000 रुपये ये हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है कबीर, सबकी ड्राइंग कितनी है 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू 6/12, यहाँ पर एक नोट लिख दिया मैंने, वाई टाइम ऑफ ड्राइंग is not given in the question, so it should be
be taken average period based for that is 6 month, that is 6 month। तो हमारे पास कितना आ गया, 1500 रुपये आ गया इसका। जोरावर का उसका भी 1500 रुपये, और पारुल का उसका भी 1500 रुपये, तो 4500 रुपये बाहर, राइट। 4500 रुपये, तो ये 159, तो 159 500 टोटल हो गया। यहाँ पर भी 159 500। अब आता है इसकी कैलकुलेशन। इसमें भी सेम वो है कि एप्रोप्रिएशन, पहले मैं यहाँ से थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ समझाने के लिए कि एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। इसमें भी एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट है, तो फिर क्या बनेगा सर, एप्रोप्रिएशन रेशियो बनेगा। इसकी कैपिटल कितनी है, एप्रोप्रिएशन कितना है, अब ध्यान से देख लो, एक का है 24 और 26, कभी कभी को इकट्ठा कर लो तो कितना हो गया सर, 50,000 रुपये। जोरावर और जोरावर को इकट्ठा कर लो, जोरावर यहाँ 24 है, यहाँ 16 है, तो जोरावर कितना हो गया 40,000। अब पारुल को, पारुल का 1 लाख यहाँ पर है और 10 यहाँ पर, तो 1,10,000, ठीक है। अब इनको एक बार यहाँ चेक करना चाहो तो कर लीजिए, ये कितना हो गया 2 लाख, और अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास कितना है 15159 कम है, तो यहाँ पर 2 लाख रुपये आपकी एप्रोप्रिएशन है और अवेलेबल प्रॉफिट आपका 159,500, या 155 भी ले लो तो भी उसका ज़्यादा ही है एप्रोप्रिएशन। तो रेशियो बनाओ सर, 5:4:11, सबका टोटल कितना आ गया 20। अब शेयर निकालो, आप उसकी शेयरिंग निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जो प्रॉफिट अवेलेबल है। एक पॉइंट और, तो रिजर्व, रिजर्व में मैंने नोट नंबर 2 लगाया और लिख, इसके लिए नोट नंबर 2 क्या कहता है कि इफ एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट, सो नो ट्रांसफर टू रिजर्व। ये नोट ध्यान रखना, नोट नंबर 2 में एप्रोप्रिएशन हमारी ज़्यादा है, यदि हमने एप्रोप्रिएशन को देखा तो वो 2 लाख है और हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल इतना है, कम है, तो हम प्रॉफिट में से रिजर्व को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। हमने फिर एप्रोप्रिएशन रेशियो बनाई, एप्रोप्रिएशन इकट्ठी की, कभी की अलग की, जोरावर की अलग की और पारुल की अलग की, उनकी रेशियो बनाई, जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें आराम से। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आ रहा है 56। रीड द प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। ये राइट, यहाँ पर partners capital, there are the 2 partners X and Y, partners capital account, name of the partner
एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फॉर द ईयर एंडेड। आप अपनी हैबिट खराब ना करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपने देना है, टीचर्स ने नहीं देना। कई बार टीचर्स शॉर्टकट्स कहीं पर लगा देते हैं, आपने नहीं करना है, आपने पूरा ही लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले प्रॉफिट, इसमें दो चीज़ आ रही हैं, प्रॉफिट। अब इसमें एक चार्ज भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उस इंटरेस्ट ऑन लोन को यहीं एडजस्ट करना है। टोटल प्रॉफिट आपके पास 4,61,000 का है, 4,61,000 और माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 50,000 का लोन है, 6 महीने की टाइमिंग है और अमाउंट बनती है 1,500 रुपये। ठीक है, ये मैंने 1 रख लिया और यहाँ पर नोट नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन की कीमत है आपकी 50,000, रेट है हमारे पास 6% और टाइमिंग भी, जिससे हमारी वैल्यू आती है 1,500। वो मैंने लेस कर दिया, लेस करके प्रॉफिट निकाला 459, तो हमारे पास आ गया 459,500, ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया। अब आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, एक्स कितना है, एक्स और वाई दोनों का है, एक का है 24,000, एक का है 16,000। इसमें नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2, कितनी कैपिटल है, 2 लाख, सर उसकी कैपिटल 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 12%, तो ये 24,000 रुपये। नंबर 3 उसका 1,50,000 इंटू 12/100, तो उसका 18,000 आ गया, तो ये 18,12,000। ठीक है, ध्यान से देख लो एक एक चीज़ को, इम्पोर्टेंट्स है सारे। उसके बाद आता है टू एक्सेस कमीशन, एक्सेस कमीशन 3,50,000 इंटू 5/100, और ये नोट नंबर 4, तो नोट नंबर 4 में सर 3,50,000 इंटू 5/100, तो कितनी वैल्यू आ गई सर, 17,500। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 17,500। अपनी कैलकुलेशन को देख लो, एक्सेस सैलरी चेक करो, तो वो एक्सेस सैलरी कितना है सर, 5,000 रुपये पर मंथ की सैलरी। मैंने इसका भी नोट बना दिया नंबर 5 में, सर 5,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है इंटू 12, तो 60,000 रुपये इसकी सैलरी बनती है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है वाइज सैलरी, उसकी क्वार्टरली है, तो वाइज सैलरी तो 6 में क्या है, उसकी 22,500 एक क्वार्टर की सैलरी है, और देयर आर द 4 क्वार्टर, तो ये कितना बनता है 90,000, तो 90,000 रुपये इसकी सैलरी हो गई, ये बात ठीक हो गई। उसके बाद आता है टू रिजर्व, 20% रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है टू, इसमें ऐसा नहीं है, प्रॉफिट एम्पल प्रॉफिट है, यानी सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो इसमें इसको ट्रांसफ़र करने की दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट, इसमें से इन सबको लेस करने के बाद नंबर 7, ठीक है, आंसर डिविड, तो ये आपका 2.5 लाख रुपये बनेगा, तो ये आपका 4
59,500 माइनस 42,000 माइनस 70,500 माइनस 60,000 माइनस 90,000, तो हमारे पास बन गया 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये। तो 2.5 लाख रुपये पर कमीशन का क्या रेट है रिजर्व पर? 20%। तो 20/100 तो आपका 50,000 रुपये मिलता है। तो ये आपका 50,000 रुपये आता है। ये भी क्लियर हो गया। अब आपके आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चेक करो कितनी ड्राइंग है। एक की 1 लाख है, एक की 25 है। 6 महीने के टाइम में 10% का रेट है। तो एक्स उसकी ड्राइंग थी 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये इंटू 6% का रेट है, 10% का रेट क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास आ गया 5,000। वाई की ड्राइंग हमारे पास कितनी है? 1,25,000 से 1,25,000 इंटू 10/100 और इंटू 6/10, तो कितनी वैल्यू बनती है? 6250। अब आप इसका टोटल कर लीजिए। टोटल करके आ गया 4,70,750। 4,70,750। 4,70,750। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल कितना प्रॉफिट आ गया? 2,12,250। 2,11,250। अब एक्सिस शेयर 22 शेयर। अब इसमें नोट दे रखा है, मैंने इसके लिए नोट नंबर ले लिया 8, इसके लिए 9। तो नंबर 8 में कैलकुलेशन कैसे होगी? अब देखो उसके दो तरीके उसने दे रखे हैं कि भैया 1,75,000 का प्रॉफिट तो घटेगा उनका कैपिटल रेशियो में। तो 1,75,000 निकाले, 1,75,000 तो घटेगा कैपिटल रेशियो, तो 4/7। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल रेशियो, एक की कैपिटल कितनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक की 2 लाख, एक की 1.5 लाख। 2 लाख रेशो 1.5 लाख, तो ये 4/3 और टोटल हो गया 7। तो वो 4/7। तो इसमें से 1,75 में से तो इसकी शेयरिंग आ रही है, 1,75 में से इसकी शेयरिंग आ रही है 1 लाख रुपये, राइट। अब उसका प्रॉफिट कितना था? 2,11,250। उसमें से 1,75 तो गया और 1,75 जो चला गया, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा? निकालो कितना बचेगा। हमारे पास बचेगा 36,250। तो ये आ गया हमारे पास 36,250। तो 36,250 में से आधा आधा बटेगा, तो 18,125। तो इसका जो प्रॉफिट हो गया इसका 118,125। इसका आ गया 118,125। इसी तरह से दूसरे का निकाल लीजिए। दूसरे का 93 माइनस करेंगे कितना आ गया? 93,125। 93,125, ठीक है। इसके दो पार्ट में कर ही देता हूँ। आपको पहले पार्ट में से कितना आएगा? 75,000 और दूसरे में से 18,125। तो इसका हिस्सा लिया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
बाई सबसे पहले बैलेंस डी 2 लाख और 1.5 लाख सबको पता है, 2 लाख और 1,50,000 ये हो गया। सारी अप्रोप्रिएशंस को लाओ बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24 और 18, 24,000 और 18,000 बाई सैलरी बाई कमीशन दिख रहा हो, बाई कमीशन किसको है, एक्स को कमीशन है और कितना है। दूसरा बाई सैलरी चेक करो, सैलरी एक्स को भी वाई को भी 60,000 और 90,000, ये 60,000 और 90,000 ये हो गया। रिजर्व बटेगा नहीं तो ड्राइंग कितनी है, 1 और 1.25 लाख यानी 1 लाख और 1,25,000। इंटरेस्ट भी वही आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन हमने पढ़ा है कितना है सर, एक का 5,000 और एक का 6,250 और रहेगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना है, एक का 18,125 और दूसरे का 93,125। अब आप टोटल करिए, टोटल इसका तो 4,19,625 आ रहा है, 4,19,625 तो 4,19,625 और 2 बैलेंस सी, तो सी आप निकालेंगे तो कितना आ गया, 3,14,625, 3,14,625। अब इसका टोटल करें, इसका टोटल आपका बनता है 3,51,125 625, तो 3,51,625 तो दिस माइनस दिस, तो कितना आ गया होगा 2,19,875, 2,19,875। तो आप ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से करिए। Once again, this is the appeal to all the students who are watching this video. Please subscribe the channel, send their doubt to the teachers. Thank you very much.